Welcome dear student. Today we are going to discuss partnership accounts. Today we will discuss sum number 9, preparation of partnership account as per fixed capital accounting method. What we mean by fixed capital accounting method is, friends, whenever the partner want to keep their capital fixed, and all the changes they will show in other account which is known as current account, so that their capital will remain fixed and all the changes are shown in their current account. That is called fixed capital accounting method. So in fixed capital accounting method, we have to prepare three accounts, that is profit and loss appropriation account, partners capital account, and also we prepare partners current account. Let's see the question number 9. Bhadresh and Hiral are the partners of the firm. Their profit and loss sharing ratio is 3:2. On 1st April 2016, total capital of partner was 4,20,000. The proportion of their fixed capital is 4:3. So this capital 4,20,000 will be distributed among the partner in the proportion of 4:3. On this day, the balance of their current account are as follow. As you know friend, here we have to prepare current account because it is fixed capital accounting method. So the balance of current account is given. Bhadresh 36,000 credit balance and Hiral 24,000 debit balance. As per partnership deed, per annum 12% interest is payable on capital of a partners. Provide per annum 10% interest on opening balance of current account. Per annum 12% interest is charged on drawings. Rupees 2,400 per month as a salary are payable to Bhadresh for his active role in the firm. On 1st October 2016, Bhadresh has withdrawn rupees 36,000, and on 1st January 2017, Hiral has withdrawn rupees 48,000. 10% commission on net profit is payable to Hiral from the net profit after deduction of his such share from the net profit. Before consideration of above mentioned adjustment, the profit of the year ended on 31st March 2017 of the firm was 4,06,800. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account as well as current account as per fixed capital method. As you know friend, here we have to calculate this sum by fixed capital method, and that's why we have to prepare capital account as well as current account, and that's why the balance of current account is also given to you. So one of the important point of this sum is how to prepare current account, that we will discuss. And also one more important point here given to you is that 10% commission is to be given to a partner, but after deduction of such share. यदि ऐसा दिया हो after deduction of such share, then how the commission is to be calculated, that important point also we discuss in this question. Let's prepare the profit and loss appropriation account. एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ Bhadresh and Hiral for the year ending on 31st March 2017. Here we have debit side particulars rupees, credit side also we have particulars and rupees. Also we prepare the capital account. हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑन द डेबिट साइड we have date particulars. We have two partner Bhadresh and Hiral. Again we have date particulars. We have two partner Bhadresh
and Hiral. So that is the capital account, and also we prepare the current account. So partners current account. Friends, here also we have date, particulars, then two partner Badresh and Hiral. Credit side also date, particulars, two partners, that is Badresh and Hiral. फ्रेंड्स, जब हम कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाते हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट में बहुत ही कम ट्रांजेक्शन्स आते हैं, इसलिए हम छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे. ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट. तो हम करंट अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाएंगे. तो इस तरह से फ्रेंड्स करंट अकाउंट बड़ा बनेगा एंड कैपिटल अकाउंट थोड़ा छोटा बनेगा. नाउ फ्रेंड लेट्स सी, हम यहाँ पर वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले हमको यहां पर दिया हुआ है कि Badresh and Hiral are partners. Their profit and loss sharing ratio is 3:2. That is their profit and loss sharing ratio. On 1st April 2016, total capital of the partner was 4,20,000 and the proportion of fixed capital is 4:3. So friend, first of all, this 4,20,000 will be distributed among the partner in the ratio of 4:3. Let's see how we can distribute that. So we will write down the working notes. In that working notes, we will show the capital balance of partner. Friends, total capital is 4,20,000, which is to be distributed among the partner in the ratio of 4:3. सो बद्रेश का कैपिटल आएगा 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 4 + 3 7. सो बद्रेश का कैपिटल होगा 4/7. 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7. सो कैपिटल ऑफ बद्रेश इज 2,40,000. In the same way, we will calculate the capital of Hiral. 4,20,000 multiply by 3 divide by दोनों का total, that is 7. So 4,20,000 multiply by 3 divide by 7, so 1,80,000. फ्रेंड्स, ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल. तो जो टोटल कैपिटल दिया था वो हमने उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. This capital is opening balance of capital, and that's why in the capital account on the credit side on 1st April 2016 हम लिखेंगे balance brought down 2,40,000 Badresh and 1,80,000, that is a capital balance of Hiral. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया. नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर दिस बैलेंस इन द सम इट इज गिवन दैट ऑन दिस डे द बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट आर गिवन टू यू. Badresh 36,000 क्रेडिट बैलेंस एंड Hiral 24,000 डेबिट बैलेंस. फ्रेंड्स, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. कैपिटल का तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसलिए कैपिटल में हमने क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है. लेकिन करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है. बद्रेश का क्रेडिट बैलेंस है 36,000, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 1st April 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन. बद्रेश का बैलेंस है 36,000. क्रेडिट बैलेंस वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड. एंड एज यू नो फ्रेंड, हिरल का डेबिट बैलेंस दिया है 24,000. सो डेबिट बैलेंस वी विल राइट इन द करंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1st April 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000. सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है एंड डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है. Now after this transfer of their current account balance, it is given that as per partnership deed, per annum 12% interest is payable on capital of a partner. पार्टनर के कैपिटल पे हमें 12% इंटरेस्ट गिनना है. बट बिफोर दैट वी हैव टू राइट द प्रॉफिट in the profit and loss appropriation account. So at last in the sum it is given to you friends that
the profit for the year ending on 31st March 2017 was 4,06,800. This 4,06,800, that is the profit. Profit we will write here on the credit side. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,06,800 4,06,800 ये हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे दैट इज अवर नेट प्रॉफिट ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ एंड फ्रेंड्स हियर इन द सम इट इज गिवन टू यू दैट ऑन 1st October 2016 Bhadresh has withdrawn 36,000 and on 1st January 17 Hiral has withdrawn 48,000. फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बनाए whenever we prepare current account then partners का drawings हम current account में ट्रांसफर करते हैं so friends in the current account on the debit side we will write the drawings of a partner के drawings को हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं सो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1st October 2016 ड्रॉइंग्स Bhadresh withdrawn 36,000 on 1st October and Hiral withdrawn on 1st January 17 1st January 17 को हिरल ने विड्रॉ किया है 48,000 सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख दिया बिकॉज दोनों की डेट अलग अलग थी इसलिए हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट सेपरेटली लिखा Bhadresh 36,000 हिरल 48,000 सो दैट इज द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर तो हमने सम में से प्रॉफिट लिख दिया एंड ड्रॉइंग्स का बैलेंस दिया था और ड्रॉइंग्स लिख दिया नाउ फ्रेंड्स व्हाटएवर देयर इज अ रूल्स एज पर द पार्टनरशिप डीड दैट वी ट्रांसफर हियर तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है कि एज पर पार्टनरशिप डीड 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है 2,40,000 एंड 1,80,000 इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज 12% ऑन देयर कैपिटल लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं Bhadresh का कैपिटल का बैलेंस है 2,40,000 उस पर 12% गिनेंगे सो 28,800 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया Bhadresh का ऐसे ही हम हिरल का कैलकुलेट करेंगे हिरल का बैलेंस है 1,80,000 1,80,000 का 12% 1,80,000 का 12% यानी 21,600 21,600 is interest on capital of Hiral Bhadresh का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 28,800 हिरल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 21,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Bhadresh 28,800 and Hiral 21,600 total interest on capital is 50,400 interest on capital is expense for partnership firm so it is debited in profit and loss appropriation account but it is income for a partner ये पार्टनर के लिए इनकम फ्रेंड्स यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड होती तो हम कैपिटल अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड में लिख देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन यहाँ पे हमने करंट अकाउंट बनाया है यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड है और हमने करंट अकाउंट बनाया है एंड दैट्स व्हाई हम इसको करंट अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा क्रेडिट साइड में 28,800 Bhadresh का and 21,600 Hiral का that is interest on capital of a partner after calculating interest on capital provide
per annum 10% interest on opening balance of current account. करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पर हमें 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, जैसे बद्रेज का क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट भी हो सकता है। तो उसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस तरफ आपको बैलेंस दिया हो उसी के नीचे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बद्रेज का आपको बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, तो उसके नीचे ही इसका 10% इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, 10% ऑफ 36,000 यानी 3600। सो जहां पे बैलेंस दिया है उसके जस्ट नीचे यू हैव टू राइट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। हिरल का डेबिट बैलेंस दिया है, तो इस बैलेंस के नीचे ही इसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। 24,000 का 10% यानी 2400, दैट इज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो जहां पे बैलेंस दिया हो उसके जस्ट नीचे हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। द सेकेंड इफेक्ट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बद्रेज का करंट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड है, उसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। बिकॉज आप जानते हो एक इफेक्ट डेबिट साइड होती है तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड होती है। So interest on current account of Bhadresh we will write here on the debit side, क्योंकि बद्रेज का क्रेडिट बैलेंस है, उसका इंटरेस्ट उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है, तो सेकेंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। ऐसे ही आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हिरल का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका इंटरेस्ट हमने डेबिट साइड कैलकुलेट किया है करंट अकाउंट में, तो सेकेंड इफेक्ट विल बी इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हिरल का क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सो फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में आपको ये चेक करना है कि करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज कैलकुलेटेड। नाउ हियर इट इज गिवन टू यू that per annum 12% interest is charged on drawings. Drawings पे हमें 12% interest charge करना है। Friends, in the current account you had written the drawings. Bhadresh has withdrawn on 110, 36,000 rupees, and Hiral withdrawn 48,000 on 1st January 17. सो फ्रेंड्स, हम कैलकुलेट करेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बद्रेज का 36,000 ड्रॉइंग्स किया है, 12% से 6 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे फ्रॉम 110 टू 31st March। हाउ मेनी मंथ आर देयर? 110 से गिनना है, तो 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। सो 36,000 पे 12% से 6 मंथ का इंटरेस्ट आया 2,160। एंड हिरल had withdrawn 48,000 on 1st January, तो उसका 1st January से 31st March यानी 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 48,000 पे 12% से 3 मंथ का इंटरेस्ट आया 1,140। दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बद्रेज का 2,160 एंड हिरल का 1,440, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 3,600। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड फॉर पार्टनर इट इज एक्सपेंस, एंड दैट्स व्हाई करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
बद्रेज का 2160 एंड हीरल का 1140. So interest on drawing is expense for partner and that's why it is debited to their current account. यहाँ पे हमने करंट अकाउंट बनाया है तो ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों ही करंट अकाउंट में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में अब कुछ भी नहीं आएगा. So friends, interest on drawing we will calculate it now. 2400 per month as a salary are payable to Badrej for his active role in the firm. So Badrej को हमें सैलरी देनी है 2400 per month 2400 सैलरी. Salary is expense for partnership firm. So it is debited to profit and loss appropriation account. Salary to Badrej 2400 per month. So what's about 12 months? It is 28,800. So salary to Badrej हम डेबिट साइड में लिख देंगे. The second effect of that, ये सैलरी टू बद्रेज बद्रेज के लिए इनकम हो गई. सो बद्रेज के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा. 31 मार्च 17 सैलरी बद्रेज के कॉलम में 28,800. सो फ्रेंड्स ये हमने सैलरी लिख दी ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ फ्रेंड्स after this salary, the drawings we had recorded, yes, we have to calculate 10% commission on net profit. For that, we have to make a calculation of profit and loss appropriation account. अब हमें कमीशन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करना होगा. लेट्स मेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड इन अ वर्किंग नोट. लेट्स मेक अ टोटल. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 4,12,800. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 4,12,800 एंड टोटल ऑफ द डेबिट साइड का टोटल करेंगे. टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज 82,800. सो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, डेबिट साइड का टोटल उसमें से माइनस कर दिया. अब डिफरेंस आया 3,30,000. दिस 3,30,000 इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट. इस पर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है 3,30,000 पे. लेकिन फ्रेंड्स जरा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर कैसे कमीशन देने के लिए बोला है. Here it is given that 10% commission on net profit is payable to Hiral from the net profit but after deduction of such share. फ्रेंड जब भी ऐसा दिया हो आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, देन 10% दिया हो तो 10/110 करेंगे. 20% दिया हो तो 20/120 करेंगे. 30% दिया हो तो 30/130 करेंगे. बिकॉज इट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर. यहाँ पे कमीशन कैसे देना है, उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका 10%. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आया 3,30,000 उस पर हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे. हीरल्स कमीशन 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, 10/100 नहीं करना है, 10/110 करना है बिकॉज इट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. सो 3,30,000 पे 10/110 किया तो 30,000 आया कमीशन ऑफ हिरल. नाउ दिस कमीशन वी विल राइट हियर इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कमीशन टू हिरल 30,000. फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिख दिया. लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है सो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे कमीशन हिरल के कॉलम में 30,000. आफ्टर चार्जिंग द कमीशन कैलकुलेट करने के बाद अब हम अगेन टोटल करेंगे एंड डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. क्रेडिट साइड का टोटल
4,12,800. फ्रॉम दिस 4,12,800 डेबिट वाला माइनस करेंगे इंक्लूडिंग दिस कमीशन, सो इट इज 3 लाख। ये 3 लाख है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। फ्रेंड्स, इसने हमें ये बोला था कि इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए उसका 10%। तो आप देख सकते हो इसका कमीशन माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट आया, 3 लाख, उसका 10% गिनना है यानी 30,000। लेकिन क्योंकि हमारे पास पहले 3 लाख तो था नहीं, जब हमने पहले टोटल किया तो हमारे पास था 3,30,000, उसमें इसका कमीशन भी इंक्लूडेड था, इसलिए हमने इसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए 10/110 लिया, 10/110। तो आंसर आया 30,000। ये 30,000 की हमने दो इफेक्ट कर दी फ्रेंड्स, एक इधर डेबिट साइड एंड करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसके बाद में हमने टोटल किया, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया 3 लाख। ये 3 लाख हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज अवर डिविजिबल प्रॉफिट, एंड देयर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज 3:2, that is given in the sum in the first line, that they distribute profit and loss in the ratio of 3:2। so हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। बद्रेश 3 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल 5, सो 1,80,000 आएगा। हिरल का कैलकुलेशन करेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 1,20,000 आएगा। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया। ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, बद्रेश को प्रॉफिट मिलता है 1,80,000, हिरल को प्रॉफिट मिलता है 1,20,000। आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाउ वी मेक अ टोटल ऑफ द कैपिटल अकाउंट। एज यू नो फ्रेंड, ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड था, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो ओपनिंग कैपिटल के सिवाय कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग। सारा का सारा एडजस्टमेंट, ऑल द एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारा का सारा कहां पे चला जाएगा, इन करंट अकाउंट। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड, क्योंकि अब आप देखेंगे पार्टनर का कैपिटल फिक्स रहेगा। यदि हम इसका टोटल करें तो 2,40,000 बद्रेश का टोटल, 1,80,000 हिरल का टोटल, 240 एंड 180 टोटल में से डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। इफ वी फाइंड आउट देयर क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st March 17, then closing balance carried down will be 2,40,000 and 1,80,000। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन सेम, will remain fixed, and that's why it is called fixed capital accounting method। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, fixed capital accounting method कहा जाता है, because the capital will remain fixed and all the changes we had shown in the current account, सारे चेंजेस हमने करंट अकाउंट में किए। अब आप करंट अकाउंट का टोटल करेंगे, while making the total of the current account, remember friends, इसका डेबिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है। सो लेट्स मेक अ टोटल। बद्रेश का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,77,200, 2,77,200 में से डेबिट वाला माइनस कर दो, सो यू विल गेट 2,39,040, 2,39,040, that is the closing balance of Bhadresh। Now we make a total of Hiral। हिरल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,71,600, 1,71,600 में से डेबिट वाला माइनस कर देंगे, सो इट इज 95,760।
95,760, that is the balance of Hiran. That is balance carried down on 31st March 17. फ्रेंड्स यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम 1 अप्रैल को लिखते हैं, बाकी का सारा एडजस्टमेंट हम 31 मार्च को करते हैं। इधर भी आप देख सकते हो सारा 31 मार्च 17 को हमने एडजस्टमेंट्स किए। दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड से सम गिना है, और फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड से सम गिनने से कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसके सिवाय की सारी एडजस्टमेंट्स हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे, सो दैट देयर कैपिटल विल रिमेन फिक्स। So that is the sum in which we discuss how to prepare partnership account as per fixed capital accounting method.